इस वक्त की बड़ी खबर, बी ऑन स्टैंड बाय। हम आपके सामने वो विजुअल्स लेके आ रहे हैं जो शायद अमेरिकन ओवल ऑफिस में आपने कभी नहीं देखे होंगे। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बहस हुई, पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया। ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस, सीधे प्ले करिए। इस वक्त के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तीखी बहस, पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया और पत्रकार ऐसा लग रहा था जिसे परेशान हो रही है। हो क्या रहा है? ओवल ऑफिस में पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बहसबाजी हो रही है, दोनों में डिसएग्रीमेंट साफ दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल यह है कि जॉइंट स्टेटमेंट जो आने वाला है वो आएगा कि नहीं आएगा? नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तीखी बहस हो रही है। विजुअल दिखाइए जरा यहां पर, और पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया। यह तब है जब अगले आधे घंटे में दोनों को जॉइंट प्रेशर, ये देखिए आमिर साहब, president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war in He's not Texas- speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait, answer? No, no, Can you've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only in alone. this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You And voted you men for are your brave, but they had to use our military. What about If- West? If you didn't You have our invited military me- equipment. you invited If me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's gonna be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Accept times that there- thank you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're But wrong. you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there, your people are dying, tell you you're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, you're please, running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a But I ceasefire? said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. That This was is your, with- that this was is with your Obama. president, it was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You gotta be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में बहस चल रही है, और इस बहस की जो स्टार्ट थी वो बेसिकली इससे थी कि ज़ेलेंस्की से जब ये सवाल पूछा गया, जब यूक्रेनियन रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि अगर रशिया सीज़फायर तोड़ता है तो क्या होगा, उसके बाद यही बात ज़ेलेंस्की ने बोली। फिर ट्रंप आगे बढ़ गए। ट्रंप ने कहा कि हमने तुम्हें 350 बिलियन दिए, हमने तुम्हें जैवलिन्स दिए, ओबामा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ट्रंप यहां तक आगे बढ़ जाते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुमको हमें थैंकफुल होना चाहिए। जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो बकायदा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंटरवीन करते हैं ट्रंप की साइड से। जब ट्रंप कुछ क्षणों के लिए खामोश होते, फिर ज़ेलेंस्की बैकफुट पर जाते। ये एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर नो होल्ड बार्स पहली बार ओवल ऑफिस में दिखाई दे रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये बहुत हैरान करने वाले विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। In 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's gonna be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Accept times that there- thank you accept to that- American किने people. ऊंची आवाज में ओवल ऑफिस में ट्रंप से बात की, यह बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की ने ऊंची आवाज में ट्रंप से ओवल ऑफिस में बात की। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को कई बार
चुप कराने की कोशिश की, यह भी दिखाई दे रहा है यहां पर। ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने अपना एक एक पर्सपेक्टिव रख दिया है, लेकिन जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में, जेलेंस्की ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, जेलेंस्की ने कई बार ट्रंप को चुप कराने की कोशिश की है। I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire? But I said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That It wasn't doesn't with matter me. for you what. That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with you. a guy named Biden who was not a smart person. That was This with is your Obama. president, it was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. यह बड़ी बात है। ट्रंप ने कहा कि हमने तुम्हें जैवलिन्स दिए हैं। जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में बात की। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने बहस हुई, और यकीन मानिए यह सब हो रहा है आधे घंटे पहले, जब दोनों को ज्वाइंट प्रेशर करना है, दोनों को ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करना है, और यहां पर बहस हो रही है। वहां पर यूक्रेन के पत्रकार हैं, रशिया के पत्रकार हैं, वहां पर रॉयटर्स और एपी नहीं है, एसोसिएटेड प्रेस। लेकिन ओवल ऑफिस में जेलेंस्की पर भड़के ट्रंप। जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में बात की। जेलेंस्की ने डिफेंसिव होना आपसे बेहतर समझा कि वो एक फ्रंट फुट पर जाएं, ये बताएं कि देखिए अगर हमारे ऊपर बम गिर जाएगा तो क्या होगा, सीज फायर तोड़ा जाएगा तो क्या होगा। ट्रंप ने यहां पर जेलेंस्की को गिनाना शुरू कर दिया कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a ये very दोनों hard- के बीच में जो बहस चल रही है, और ये हालात इतने हीटेड हो गए कि बीच में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बोलना पड़ा। यकीन मानिए यहां पर दो प्रेसिडेंट्स और दो रियलिटी स्टार्स हैं, और दिस इज एब्सोल्युटली फिल्मी। But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जितनी बॉनहोमी आपको दिखाई दे रही थी बाहर, यहां पर ऑल द कर्टन्स आर आउट। buried there. Your people. ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। You're running low on soldiers. It would be a damn good thing. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go. थैंक यू बोला, एक बार भी आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू बोला, बल्कि आप तो विपक्ष का प्रचार करने के लिए पेंसिल्वेनिया तक चले गए थे। तो यानी ट्रंप और ये जेडी वही वेंस बात है जो एम्यूनिशन फैक्ट्री में वो पिछली साल पेंसिल्वेनिया चले गए थे। इसी से मैंने शो की शुरुआत की थी। आई एम कमिंग टू यू दीपक सर, ये वहां पर बात चल गई, और ये है वो यूक्रेनियन पत्रकार आज जिसने वो सवाल पूछा था, वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई वहां पर। ये देखिए आमिर साहब करिएगा, रो रही है क्या? एक्सक्लूसिव। Into this Have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? we have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will Don't- not you have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the Zara war. You're ध्यान not से in a good देखिए, position. I You don't was- have the cards. जेडी वेंस ने ये कहा कि आपके अपने मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस युद्ध को लेकर, आप लोगों को एक प्रोपेगेंडा टूर पर लेकर जाते हैं। तो जेलेंस्की ने जवाब दिया कि आपको गल्फ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि आप इस पोजीशन में नहीं है कि हमें डिक्टेट कर पाएं, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अमेरिका का फ्यूचर क्या है, ये हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे। गुस्से से लाल हो गए हैं ट्रंप, साफ दिखाई दे रहे हैं यहां पर। Opposition in October
offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this Have you ever conflict. been to Ukraine that you say what problems we have? जेडी वेंस ने बहुत बड़ी बात कर दी है। जेडी वेंस ने कहा कि आप इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को बॉर्डर पर भेज रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा ज़ेलेंस्की पर आरोप है ये। आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली अभी-अभी। Office of the United States of America and attack the administration that is trying Exactly. to prevent इनकी प्रॉब्लम वेपन्स नहीं है, लोग हैं उसके You're right. पास। अरे 5 साल के बच्चे को भेजोगे लड़ने के लिए? You're right. ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को कहा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा, इसको ब्रेकिंग में लीजिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को कहा कि आपके कंट्री में इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इसको कवर अप करने के लिए आप लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं, आप लोगों को एज कंस्क्रिप्ट भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। एक मैसेज पढ़ देता हूं अगर आप इजाजत दें। सर, वी आर कमिंग टू यू सर, वी आर कमिंग टू यू। You're right now not in a very good position. ये इस वक्त की बड़ी खबर, Allowed yourself to be in a very bad ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। जेडी वेंस ने ये कह दिया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की के ऊपर एक बहुत स्ट्रेट हेड ऑन सवाल वहां पर लिया है कि आप अपने देश की इंटरनल प्रॉब्लम छुपाने के लिए लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। Gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect to you. you, Far Mark. more than a lot of people said Very they respect. should. आज वो हीरो बन गया। पहली A lot of times. ये बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप जो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो इस देश के लोगों का, इस देश की मीडिया का और इस देश का अपमान है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो इस देश के लोगों का, इस देश की मीडिया का और इस देश का अपमान है। मैं वर्ल्ड वॉर 3 रोकना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this Have you ever conflict. been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Bringing people ये to बहुत your बड़ा military सवाल, and ये do you think बहुत it's बड़ा सवाल। respectful जेडी वेंस ने to बोला come to the Oval कि Office आपकी of the कंट्री United में States of America इंटरनल and प्रॉब्लम्स attack the हैं जिसकी वजह से आप लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने बोला कि क्या आपने कभी मेरे मुल्क का दौरा किया है? तो जेडी वेंस ने कहा कि क्या, जेडी वेंस यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपके देश के अंदर दिक्कतें नहीं है? तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को आने वाले समय में गल्फ कंट्रीज में बहुत दिक्कत होने वाली है, जिस पर आप ट्रंप जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हम यहां पर आपकी मदद करना चाहते हैं। What we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, You strong. will feel influenced. You're right now not in a very good मेरा position. यहां पर बड़ा सवाल है, मैं एम्बेसडर दीपक बोरा से बोल रहा हूं। दीपक सर, क्या आपको लग रहा है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा इस हालात के बाद? You don't have the cards right now. नॉर्मली जो है सर, जिस तरह से ये एक दूसरे के अपनी आवाज ऊंची उठा रहे हैं, ये चाणक्य ने साहब का रेज योर वॉइस एंड लोअर द डिस्कोर्स, यानी जो फिर अग्रीमेंट है वो सब खत्म हो जाता है। मेरा जो मानना है कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा, और अगर आया तो उसका स्टैंड बाय वर्जन आएगा। दोनों लीडर मिले और उन्होंने कहा चलिए आगे देखेंगे। सर, मुझे ऐसा लग रहा है दीपक सर, अभी तक का मनीष, मैं आपके पास आने वाला हूं, बी ऑन स्टैंड बाय मनीष, और मैं सिंपल एनालिसिस लेना चाहूंगा। मनीष, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप चाहें तो मनीष को और जो भी गेस्ट को उनको पीआईपी में दिखा सकते हैं बीच में। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा अभी तक का रिपोर्टिंग का, अमेरिका के व्हाइट हाउस का तजुर्बा कहता है कि अब दोनों लोग जॉइंट स्टेटमेंट भरे ही लेकर आए, लेकिन दोनों लोग एक साथ फिर से मीडिया के सामने अब नहीं आएंगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। दोनों उस ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और आई विल नॉट बी सरप्राइज मनीष कि शायद
ये डील ना हो। मनीष योर टेक। बिल्कुल, देखिए मुझे भी यही लग रहा है कि मीटिंग के बाद या तो दोनों कैमरे के सामने नहीं आएंगे या फिर जेलेंस्की को काफी समझा बुझाकर तैयार किया जाएगा ताकि आकर वो माफी दोनों मांगे वीडियो ट्रंप से। दिखाइए। वरना ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि आपकी मुसीबत अभी से शुरू होती है। देखिए आज टीवी पर जो दुनिया भर के दर्शक देख रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 20 साल से मैं भी अगर हेड ऑफ स्टेट्स की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आज तक कभी नहीं हुआ है। पहली बार टीवी पर आप दुनिया के 2 देश के राष्ट्रपति को इस तरह से लड़ते झगड़ते देख रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ। मैं मनीष यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक बार सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप चाहें तो यहां पर मुझे ले सकते बीच में। देखिए सबसे पहले एक यूक्रेन की पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा, राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछा कि अगर पुतिन सीजफायर तोड़ दे तो फिर क्या होगा। जेलेंस्की ने कहा कि मैं भी आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं। इसके बाद दोनों के बीच में बहस शुरू हुई। ट्रंप ने कहा कि मैं आपका युद्ध रुकवाना चाहता हूं, आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि मुझसे सवाल पूछें। उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की से पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कंट्री में इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या आपकी कंट्री के अंदर अंदरूनी दिक्कतें नहीं है। जिसके जवाब में जेलेंस्की खामोश हो गए। उन्होंने कहा क्या यही वजह है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा क्या आपको नहीं लगता है कि यही वजह है, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों को फ्रंटलाइन पर भेज रहे हैं। अभी कुछ और वीडियोस भी आ रहे हैं। इसके बाद जेलेंस्की ने एक और सवाल खड़ा किया, प्ले करिए इसको। आमिन साहब। Sorry, It's here. going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you but saying? what She's if asking, Russia- what if Russia Putin breaks the ceasefire? for the What talks? if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? broken What if they ceasefire. broke it? बहुत बड़ी खबर, आज से आपके बुरे दिन शुरू। ट्रंप ने कहा आज से आपके बुरे दिन शुरू, ट्रंप ने यह कह दिया है। और यकीन मानिए अगर अमेरिका ने सपोर्ट खींच लिया तो कोई यूरोपियन कंट्री मदद नहीं कर पाएगी। नाउ दिस इज इट्स ओवर। हमें नहीं लगता अब शांति की यह डील होगी, हमें नहीं लगता। लेकिन लेट्स सी, आई होप विजडम प्रिवेल्स जेलेंस्की के ऊपर। लेकिन ट्रंप शक्ल देखिए, ट्रंप नाराज है। और मैं चाहूंगा जेडी वेंस नाराज है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति नाराज है, अमेरिका के राष्ट्रपति नाराज हैं। जेलेंस्की जो है वो जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के लेवल पर मैच्योरिटी दिखाई है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ट्रंप वॉक्स द टॉक। दीपक साहब, मैसेज एक यूक्रेनियन एम्बेसडर ने मुझे लिखा है, हमारे बहुत मित्र हैं, वो भी रिटायर हो गए। उन्होंने लिखा है, एम्बेसडर दीपक नेवर इलेक्ट अ कॉमिक एज प्रेसिडेंट। और दूसरा उन्होंने ये लिखा है सर, विच इज सिग्निफिकेंट, मालूम नहीं ये कंफर्म आप कर पाएंगे नहीं, इज इट ट्रू दैट जनरल ज़ालुश्नी, आवर एम्बेसडर इन लंदन, इज फ्लाइंग बैक टू कीव? सर मैं आप जो बता रहे हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा दीपक सर, इज द डील ऑफ द कार्ड्स? Yes. यहां पर दिखाई दे रहा है डील विल कम, वो तो लेके रहेगा, बट इफ ज़ालुश्नी इज फ्लाइंग बैक, इसका मतलब ही इज गोइंग टू टेक ओवर। सर दीपक सर, ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं, आप एक एक तस्वीर को देखिए। ट्रंप ने क्या क्या कहा है, आप गिनना शुरू करिए हमारे जितने भी दर्शक हैं। ट्रंप ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू शुड बी थैंकफुल टू अस, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैं वर्ल्ड वॉर रोकना चाहता हूं। अब आगे सुनिए ट्रंप ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि आपने अमेरिका की, अमेरिका के लोगों की, अमेरिका के मीडिया की बेइज्जती की है, अपमान किया है। आपको अपनी 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 जो लैंग्वेज है उस पर कंट्रोल करना चाहिए था। मैं इस लैंग्वेज को यहां पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ट्रंप ने बकायदा ये कह दिए, और जिस रूम में कहा है उस रूम में यूक्रेन के जर्नलिस्ट है। पहली बार रशिया की ऑफिशियल एजेंसी टास के जर्नलिस्ट है। जेडी वेंस बीच बचाव करने नहीं आए, उन्होंने सीधे सीधे अटैक कर दिया जेलेंस्की के ऊपर। और ये देखिए पत्रकारों को बाहर जाने को कहा जा रहा है। यूजुअली पत्रकारों को अंदर बुलाया जाता है दूसरे रूम में, क्योंकि हम सभी के पास बैजेस होते हैं। मनीष,
आप बताइए वो बैजेस वाली कहानी बताइए। एक ग्रीन बैज होता है जो आपको लॉन्च का एक्सेस देता है, एक ऑरेंज बैज होता है जो मनीष को आपने देखा होगा लगाए हुए, वो आपको इंटरनल। मनीष पूरा सब कुछ बताइए सलाह। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो ओवल ऑफिस में आप जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, फिर इन्हीं जर्नलिस्ट को इस रूम से निकालकर फिर प्रेस रूम में ले जाया जाता है, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड प्रेस रूम में, और जहां पर कि ये वहां पर सवाल पूछने का मौका मिलता है। और अभी एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी कि क्या अब लगता है आपको कि कोई डील होगी या फिर आप दोनों प्रेस मीट करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि वी विल सी, हम देखेंगे मुझे क्या लग होता नहीं है। रहा। मनीष एक क्विक रिएक्शन में सबसे लेना चाहूंगा, ये बहुत चिंताजनक हालात हैं। सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ है। पूर्णिमा मैम, वेरी क्विक टेक, ओनली 20 सेकंड्स। ये डील होगी नहीं होगी, जॉइंट स्टेटमेंट आएगा नहीं आएगा? आई हैव अ हंच एवरीथिंग इज ओवर। I think your hunch is absolutely correct. I feel like that as well. He literally irritated President Trump, and President Trump went off. No, not just irritated. I'm sorry. I'm not a fanboy of America, President Trump. But जो मैं देख रहा हूं, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। आपने उसी के ऑफिस में आकर उसी को आपने अपनी ऊंची आवाज में बात की, उसने आपने इंसल्ट करने की कोशिश की। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Purnima ma'am. Yes, absolutely. I mean, obviously, you see what Zelensky has done. President Trump was particularly furious about the fact that we have spent $200 and $300 billion. जी मैम, हिंदी में। कुछ दिन पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, पता ही नहीं था कहाँ चला गया था। मैम अब यहां पर ये देखिए, वो बाकायदा जेडी वेंस ने कहा कि हमने आपको $300 बिलियन दिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की आप प्रोपेगेंडा का टूर करवाते हैं, आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आप लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अमिताभ सर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एयर। क्विक टेक सर, डील होगी नहीं होगी? सर मुझे नहीं लग रहा है पीस डील। क्या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं होगी? मुझे लग रहा है कि नहीं होगी। व्हाट इज योर टेक अमिताभ सर? डील होगी, डील साइन होगी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मनाया जाएगा, लेकिन ये संडे आते आते तक डील खत्म। और ये दो पॉलिटिशियंस की मीटिंग है, हमें दो जेलेंस्की का फ्यूचर क्या है अमिताभ सर? कितने घंटे का? सॉरी कम अगेन। जेलेंस्की का फ्यूचर क्या है? कितने घंटे वो राष्ट्रपति है यूक्रेन का? देखिए जेलेंस्की अभी रहेंगे एज अ राष्ट्रपति, ये उनके देश का भी अपमान है। और मैं ये भी कह रहा हूं, दो रियलिटी टीवी स्टार, एक कॉमेडी स्टार यहां पे खड़े हैं, इन दोनों ने पूरे स्टेट्समैनशिप को, पूरे अमेरिका को और पूरे जेलेंस्की को, यूक्रेन को एक बहुत बुरा एक इंप्रेशन दिया है, जो आने वाले समय में जो भी इंटरैक्ट करेगा इन दोनों से वो बहुत परसेप्शन का फर्क है। सॉरी, अमेरिका लाइक्स दिस एंटरटेनमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अमेरिका लाइक्स, मीडिया लाइक्स, पीपल लाइक, बट दिस इज नॉट नहीं सर, मैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। निशांत, अगर आप इजाजत दें एक बात मैं जोड़ दूं आपको, ट्रंप की इस तरह से जेलेंस्की ने जो बेइज्जती की है, उसकी वजह से अब जेलेंस्की को अगर आप कहें तो समय मिल गया है। जेलेंस्की का एक ऐसी भी दुनिया है जो इस इंटरव्यू के बाद से जेलेंस्की को ज्यादा इज्जत देगी, ट्रंप को बेइज्जत करने की वजह से। मेरे पास एक मैनेजमेंट की बहुत पुरानी थ्योरी है, एग्जिट प्लान। जेलेंस्की का कोई नहीं बचा। यहां पर ट्रंप के सामने जेलेंस्की का युद्ध विराम से इनकार बहुत बड़ी खबर है ये। नाउ दैट सेज इट ऑल। जेलेंस्की इज वॉर मॉन्गरिंग, क्या ये मैं कह सकता हूं? ये बड़ी खबर है। युद्ध विराम से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है, यानी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या हुई है, ये बड़ा सवाल है। आप जनरल अशोक साहब, असल में अगर आप देखें कि जब रशिया यूक्रेन, सर मैं आपसे सवाल स्ट्रेट सवाल पूछता हूं, युद्ध विराम से इनकार कर दिया है तो क्या वो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स देगा? नहीं देगा, बट युद्ध विराम का इनकार करना और जिस तरह से उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने बिहेव किया है, उसके पीछे एक बहुत सीरियस वजह है जो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शक जानें। जब रशिया यूक्रेन के युद्ध शुरू हुआ तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी जेलेंस्की अपनी कंट्री को रशिया के अगेंस्ट लीड कर पाएगा, लेकिन जैसे 3 साल युद्ध चला, उसके अपने पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी जेलेंस्की की बहुत हाई थी। आज हम लोगों ने जब शुरू में आज यहाँ बात करना शुरू किया तो लगा था कि अब वो एकदम से एब्जेक्ट सरेंडर के लिए आया हुआ है अमेरिका में, तो उसके लिए भी एक नैरेटिव बनाना या एक स्टेटस बनाना बहुत जरूरी था ताकि वो अपने। सर आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अशोक सर, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा, आई नेवर शो माय डिसएग्रीमेंट, लेकिन ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यूक्रेन में बचा कौन है जिसको ये दिखाना चाह रहा है? ज्यादातर लोग फ्रंट लाइन पर हैं, जितने लोग फ्रंट लाइन पर नहीं है और उनमें से मैक्सिमम लोग अपने आप को एज अ डील इवैक्यूएट करा चुके हैं, वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। कुछ
मिडिल क्लास पोलैंड में है, एलीट क्लास ऑलरेडी बाहर हो चुका है। ज़ेलेंस्की इज प्लेइंग टू द गैलरी फॉर whom? मेरा सवाल यह है, मैं सीधे सीधे आऊंगा रॉबिन सर से। He is playing to the gallery for the Europeans. इसकी अपनी गैलरी बटन सर बट टूट गई है। अनफॉर्चुनेटली फॉल्ट लाइंस इतनी डीप हो गई हैं कि यूरोपियंस के कहने की वजह से, मैक्रो के कहने की वजह से ये आए, एंड मैक्रो विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद व्हाट ज़ेलेंस्की डिड। आपका क्या कहना है रॉबिन साहब? तो डेफिनेटली देखिए, ज़ेलेंस्की अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रहा है एज अ फाइटर नाउ। ये उसका लास्ट चांस है। मैं दो चीज कहूंगा, एक मैं जो भी मीटिंग आपके साथ सवाल को कंटिन्यू करूंगा, मैं फिर से आपको रोक रहा हूं। मनीष, कैन यू जस्ट फाइंड आउट क्या प्रेस ब्रीफिंग, सुमित कैन यू फाइंड आउट प्रेस ब्रीफिंग के टाइम पर हो रही है, हो भी रही, नहीं हो भी रही है? आई एम कमिंग बैक टू बोथ ऑफ यू, प्लीज गो अहेड रॉबिन सर। या श्योर। सो वन वी कैन एक्सपेक्ट जॉइंट स्टेटमेंट होना हो। एक वन साइडेड स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएस तो आएगा, या तो व्हाइट हाउस से या ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर देगा जो समरी है इस मीटिंग की शाम तक जो भी होगी, राइट? वन। सेकेंडली, बाय द वे, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इसके बावजूद डील होती है। देखिए, ट्रंप का नेगोशिएटिंग स्टाइल है ब्लफ करना, प्रेशर मारना और सेटा, राइट? और अमेरिकन कल्चर में और ट्रंप, ये लोग दूसरे को एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइट बैक भी करो। तो इस समय जो भी स्पेक्टिकल आ रही है डेफिनेटली उसे इरिटेट कर दिया, डिपेंड करेगा। अगर ट्रंप बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया देन तो ज़ेलेंस्की इज डन। बट इसके चलते ये भी हो सकता है हार्ड बार्गेनिंग होगी, एंड अमेरिका आई थिंक और ज्यादा बेहतर अपने लिए डील खींचना चाहेगा ज़ेलेंस्की से। तो मैं डील को रूल आउट नहीं करूंगा। ये इनका नेगोशिएटिंग स्टाइल है, दूसरे बंदे को अंडर प्रेशर डालना, डेडलाइंस में डालना, ब्लफ करना, ये दिखाना वो दिखाना। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जेडी वेंस ने कहा है कि ज़ेलेंस्की का रवैया अशोभनीय है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका रवैया अशोभनीय है, और मेरे पास जो जानकारी आ रही है, ये जानकारी के ट्रंप ने कहा यू आर नॉट विनिंग दिस, यू हैव टू बी थैंकफुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो डिटेल हमारे सामने आ रहे हैं ये बहुत शॉकिंग है। ये एंड ये ट्रंप का ये कहना कि आपके बुरे दिन आज से शुरू होते हैं, ये और ज्यादा चिंताजनक है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये और ज्यादा चिंताजनक है। इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, एक एक डिटेल, एक एक जानकारी हमारे सामने इस वक्त जो आ रही है ये शॉकिंग है। हमारे जितने भी दर्शक हमको आपको बता रहे हैं, मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा। मनीष, व्हाट इज द अपडेट? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब तो कम से कम पुतिन और ट्रंप की मीटिंग भी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, जब उन्होंने देख लिया कि हालात यहां तक। मनीष, मुझे कुछ और लग रहा है, आपका सस्पेंस, I'm सॉरी बीच में रोक रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात भयंकर बम्बार्डमेंट होने वाला है। ये बात बिल्कुल सही है कि पुतिन की तरफ से बहुत बमबारी होगी, लेकिन एक बात देखिए, असली बमबारी तो ओवल ऑफिस में हो गई, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था वो हम इस वक्त कैमरे पर देख रहे हैं। दो राष्ट्रपतियों के बीच इस तरह से गली मोहल्ले जैसे लड़ाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को ज़ेलेंस्की ने जिस तरीके से यहां पर कहा है, और दोनों के बीच में तू मैं हुआ है, लेकिन आप याद करिए ट्रंप के सामने, क्योंकि देखिए आप एक बात समझिए, ज़ेलेंस्की के साथ करो या मरो की स्थिति है। ज़ेलेंस्की को तब भी पता है कि मैं इसके साथ प्यार से मिलूंगा, गले मिलूंगा, तब भी मुझे हटना ही है। तो ऐसी स्थिति में ज़ेलेंस्की जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? ट्रंप एक्सपोज हो रहे हैं। पहली बार ट्रंप को, जब से वो राष्ट्रपति बने, पहली बार किसी ने आकर उसके कमरे के सामने, सब पूरी दुनिया के सामने इस तरीके का व्यवहार करके दिखा दिया कि आप उतने स्ट्रांग नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष, मैं आपको रोकूंगा। बड़ी खबर, ट्रंप ज़ेलेंस्की में तीखी बहस हो रही है। ये बड़ी खबर मैंने आपको सीधे ब्रेकिंग दिखाई है। ज़ेलेंस्की का ट्रंप पर बड़ा आरोप। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की का, आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, दिस इज हाराकिरी, जापानीज वर्ड है। यूएस मदद के बिना 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी जंग, ट्रंप ने कह दिया है। और मैं आपको इसके आगे की कहानी बताना चाहूंगा। ट्रंप ने कहा है पत्रकारों से, यह बहुत चिंताजनक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने अभी अपनी ट्रंप ने कहा है, यू सी द हेट्रेड ही हैज गॉट फॉर पुतिन, इट्स वेरी टफ फॉर मी टू मेक अ डील विद दैट काइंड ऑफ हेट, ही हैज गॉट ट्रिमेंडस हेट्रेड। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सीधे चल रहा हूं। पूर्णिमा मैम, आपके सोर्सेज, नॉट जस्ट यूर एन एनालिस्ट, मैम आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? ये कहां तक जाएगा? क्या ये जो हम उम्मीद कर रहे थे, ऑल ड्रेस्ड अप टुडे से शुरुआत होता है और उसके बाद ये ड्रेसिंग डाउन तक आ जाता है? वेयर इज इट गोइंग?
देखिए ऑब्वियसली नोबडी प्रेसिडेंट ट्रम्प के हिसाब से आपने उनके कैरेक्टर अगर एनालाइज किया, आपने ये तो स्पेसिफिकली देखा होगा कि ही डजंट लाइक एनीबडीज डिक्टेटिंग फिगर्स। उनके ऑफिस में आके कोई फॉरेन कंट्री के लीडर आके ऐसे बात करेंगे, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन लाइटली। यू अंडरस्टैंड from his particular perspective of his personality, or at this moment what American people have voted is to finish the war and no more money going from America to Ukraine. And at the end of the day आपको मैं ये बोलना चाह रही थी, आपको पता है कि ये रिपोर्ट खुलासा करा गया था कि ज़ेलेंस्की का $95 मिलियन का वर्थ ऑफ प्राइवेट। ओके मैम मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर देखनी चाहिए यहां पर सबको। एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। सीधे ब्रेक करिए जरा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, राष्ट्रपति ट्रंप, यूएस यूक्रेन युद्ध विराम मेरे बस की बात नहीं है। रूस यूक्रेन में नफरत चरम पर है, ट्रंप ने कहा है। और एक और बात जो अब से थोड़ी देर में आपके पास आने वाली है खबर, वो ये है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फाइनल ऑफर दे दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज अभी टीम के पास फ्लैश हो चुकी है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फाइनल ऑफर दे दिया है, कहा है कि ईदर यू मेक अ डील और यू वॉक अवे फ्रॉम इट। मतलब इट इज रीच टू दैट लेवल। दीपक सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइगर वही कर जो मैं चाहता हूं, तो चूहा है मैं शेर हूं, और अगर ज्यादा बकवास करेगा तो वापस नहीं जाएगा। सर आई रेड दिस मैसेज, इज जनरल ज़ालुजनी स्टिल इन लंदन या कीव जा रहा है? अगर वो कीव जा चुका है ऑन सम विद सम अमेरिकन सपोर्ट, तो ये वापस नहीं जाएगा, ये जोकर सर्कस वाला, क्योंकि इसका बाप ज़ालुजनी वहां बैठा हुआ है, फॉर्मर आर्मी चीफ। ये वापस नहीं जाएगा सर। ये बहुत बड़ी खबर एक और आ रही है, ईदर यू मेक अ डील और यू वॉक अवे फ्रॉम इट। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सीधे बोल दिया है। मेरा जो हंच कह रहा है, जो मेरा अंदाजा कह रहा है, सुमित, आई थिंक द डील इज नॉट हैपनिंग। क्या कह रहे हैं आप सुमित? जिस तरीके से रिएक्शन मिल रहे हैं, जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, मुझे भी ये लगता है कि अब ये डील नहीं होगी, और अगर होगी भी तो अब ज़ेलेंस्की के बिना होगी। यानी ज़ेलेंस्की जाएंगे, लगातार युद्ध में जिस तरीके से वो चाहते हैं वो लड़ेंगे, लेकिन अब अमेरिका की कोशिश होगी ज़ेलेंस्की को वहां से निकालना या फिर प्रेसिडेंट को बदल देना, क्योंकि अमेरिका को भी क्लियर हो गया कि ज़ेलेंस्की के। अच्छा, मैं एक मिनट सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। वो विजुअल जरा प्लीज प्ले करिए। वो जो एक महिला पत्रकार सिर पकड़े बैठी थी, हमारी नजर उस महिला पत्रकार पर थी, उसके बगल में एक सज्जन जो बैठे थे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो वाला विजुअल प्ले करिए। वो बेसिकली यूएस में यूक्रेन के एम्बेसडर थे। वो वीडियो प्ले करिए।